Second lecture for the topic magnetic field due to current, and we see in this one how in presence of magnetic field, if we introduce a charged particle, how the force realize on the charged particle by using Fleming's left hand rule, where the first finger represent the index finger represent the velocity magnetic field, central finger represent the velocity of the charged particle, or you can say current flowing in a conducting wire, and thumb represent the force. And on that basis we can find out the radius, we can find out time period, we can find out frequency, kinetic energy and all this. And after that हम लोग देखा था कि उसको कहते हैं हेलिक्स. आज हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था, तो आज हम लोग स्पेशली वहां से स्टार्ट करेंगे. एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर जो मैं अभी कराने वाला हूँ, इसके ऊपर एक बार आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आया था और उसका 4 ऑप्शन था. एंड द क्वेश्चन इज मोर देन वन चॉइस एंड ऑल क्वेश्चन इटसेल्फ is a concept. So let's start. So what happened, like suppose you have a in presence of magnetic field, this cross indicate the magnetic field is into the page, and suppose this one is the line, means after that no magnetic field is there, within that you have magnetic field. And suppose if a charged particle entered in that way with some velocity, and this is the magnetic field, obviously uniform. So they ask you two types of questions. One is that how much time spent inside this magnetic field, that is question number 1. And question number 2 is that what is the distance or the track length of the charged particle, and with what velocity it will moving out. So very simple. Whenever you have this type of question, the first finger represents the magnetic field, central finger represents the velocity. So this is the force. So see the forces in this side. So we are showing the force by the red pen, and suppose this is the center. So it's a very simple. You can do one thing, like take a compass and make a circle. So if you make a circle, because this is the force, that means this is the center. So as this is the center, and if you make a circle, it will be look like this. And after that, so up to this, it is a uniform circular motion. What do you mean by uniform circular motion? Uniform circular motion means no change in magnitude. Its velocity remains same, and from here it will be again moving with the same velocity. So if this is the radius of the track, so if you want to find out the circumference, it's very simple. The circumference means S is pi, the angle into R. And we all know from the previous class, the radius of the circumference is mv by qb. So here pi mv by qb. So this is one part. This one is the one part. They ask you what is the circumference of the circle, and the second thing which is very very important, time spent. See, the time period is 2 pi m by qb, and here the time period means the total time period. When the particle is in circular motion, this 2 pi means the whole circle. But here, as it not complete the whole circle, it's in this magnetic field is half circle. So instead of this 2 pi, if we write pi, then it will be the time spent inside the magnetic field. So it's not time period, it's the time spent in magnetic field. Same process, how we find out the time period? Arc length by speed. So arc length is pi in v by qb by v. So v cancel. So we have pi m by qb. So this is very very important. This one is very very important. See, the only difference is here you have 2 pi, here you have pi, because pi means half circle. Is it okay? You can say this is the type 1. Type 1. 1 is complete circle. If it is within this, then it is a complete circle. Now this is the second part. So here, if we categorize it, so this is the type 1. Up to this, is it okay for everyone?
Yes, sir. Now I'm trying to, this is the horizontal line, a charged particle moving in that manner. This angle is theta. The previous one, it will be moving normally. Then this theta is 0 degree for that case. But now here it is moving in that way. So again, you have to use your Fleming's left hand rule. So central finger or index finger, velocity and force apply in this direction. See, force is in this direction. So force is in this direction means this one is the force. So almost, if we suppose this is the radius, I'm just taking it imaginary. Suppose we are choosing this point as a center. So if this is your radius, so you can make a circle, and if you make a circle, it will be look like this, and it will be again coming back from there. So this angle is theta. So I can give you one hint, or you can say one conclusion from where you can find it in very simple manner. देखो मैं इसमें अभी बात बताऊंगा, इससे अगर तुम लोग फॉलो करोगे, so you can find it in very simple manner. Suppose this is the magnetic field, and if the particle in this way, so it's move in a circular motion. Very simple. देखो अगर हम यहाँ पे सोचे कि ये ऐसे गया, तो ये यहाँ पे कैसे आएगा ऐसे. तो अगर हम इसका बीच वाला को ये वाला हटा दे, समझने की कोशिश करो. अगर मैं नीचे वाला को हटा दूं तो ये गया वापस आया. सेकंड वाला, मैं अगर यहां से सोचूं कि ये ब्लू लाइन के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ब्लू लाइन के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा. और रिटर्न कैसे आएगा, ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट जाएगा. और ये ऐसे आ रहा था, जहां मैग्नेटिक फील्ड में आया ये सर्कुलर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, ये सीधा निकल गया. तो देखो एक चीज ध्यान करके देखो, तो अगर सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन से नीचे, मतलब इफ द सेंटर इज टुवर्ड्स द, माने फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सो देन योर एंगल इज सर्कुलर ट्रैक इज मोर देन 180 डिग्री. अगर ये यहाँ पे है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स अगर एकदम सेंटर के तरफ लग रहा था, जैसे ऐसे करके लग रहा था, सो एग्जैक्टली 180 डिग्री मूव करेगा, मतलब हाफ सर्कल. और अगर ऐसा होता कि यहाँ से शुरू होता, जस्ट इमेजिन, यहाँ से शुरू होता, जो हम लोग इसके बाद वाला में देखेंगे, तो इधर से ये निकल जाता, तो देखो फोर्स कितना लग रहा है. मतलब तुम सोच सकते हो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ ये ऐसे आया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म और फिर इधर चला गया. इन दैट केस देखो सेंटर किधर हो गया, बाहर. तो एक ही बात याद रखना, इफ द सेंटर इज ऑन द लाइन, then half circle. If the center is within the magnetic field, more than quarter. If the center is outside the magnetic field, then it's a less than quarter. ये हिंट है. मैं इसको थर्ड वाला में जब बताऊंगा फिर से एक बार दिखा दूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. अब तुम्हें क्या करना है, तो देखो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा. सो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. सिमिलरली ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा. सो अगर हम टोटल बात करें, देखो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा. तो ये एंगल टोटल हो गया पाई माइनस 2 थीटा. और ये वाला एंगल कितना होगा, इसका मतलब वेरी सिंपल, मोर देन 180 डिग्री. देखो मोर देन 180 डिग्री है ना, क्योंकि 180 डिग्री तो यहाँ तक होता, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई प्लस 2 थीटा. तो याद रखने का तरीका, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है तो फुल सर्कल, लेकिन अगर एकदम 90 डिग्री, जैसे ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके घुस रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा. फोर्स अब ये अगर ऐसा हो गया और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड शुरू है, इस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड शुरू है, तो थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा. लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब इस लाइन से, इस ब्लैक लाइन से मैग्नेटिक फील्ड शुरू है और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ लग रहा है, तो एंगल जो होगा मोर देन पाई, तो पाई प्लस 2 थीटा. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मानो फोर्स इधर में लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से सेंटर की तरफ बाहर है, और ये इस हिसाब से जा रहा है,
तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, मतलब इन दैट का टाइम हम लोग नेक्स्ट बार देखेंगे, तब ये पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा. सो व्हेन यू गेट द थीटा, नाउ द टाइम, आर्क लेंथ क्या था, एंगल इज पाई प्लस 2 थीटा into radius is r, which is pi plus 2 theta mv by qb. और जब this one is pi plus 2 theta mv by qb, so time spent is s by v, so सिर्फ v को निकालना है, pi plus 2 theta m by qb is the time spent inside the magnetic field. जहां मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो जाएगा, मुझे एंगल लेना है पाई प्लस 2 थीटा. इसी को मैं अगर ऐसे भेजता, जो पहला वाला में भेजा था, तो देखो फोर्स इधर आ गया, मतलब अगर जो सेंटर है ऑन द लाइन हो गया, जहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो रहा है, एंगल इज 180 डिग्री मतलब पाई. और अगर मेरा ये ऐसे जाएगा, अगर ये मेरा ऐसे जा रहा है, तो देखो सेंटर इधर हो जाएगा, मतलब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है. अगर सेंटर अंदर की तरफ हो गया, तो देन द एंगल इज पाई प्लस 2 थीटा. तो अगर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है, तो पाई प्लस 2 थीटा. अगर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, जो हम लोग इसके बाद वाला में देखेंगे, तो पाई माइनस 2 थीटा. और अगर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में है, 180 डिग्री. और अगर चार्ज पार्टिकल पूरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, बाहर निकलने का कोई चांसेस ही नहीं है, तब देन एंड ओनली देन इट विल एबल टू कंप्लीट फुल सर्कुलर मोशन. मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा, so this is the line within which you have magnetic field. Below this no magnetic field is there. Obviously this magnetic field is uniform. If it is not uniform, then the track is not a uniform circular motion, then it is non-uniform. So obviously we have to put this uniform, and this is the normal line. This one is the normal line. The last one we see, that is the charge particle enter normally. Second one we see the charge particle enter like this. And the next one, if we see, the charge particle is entered in that way, QB. And now this angle is theta. So basically, that is not a main important part. Main important part is that in which direction the force apply. The last one force apply, first one force apply this one, second one force apply towards the magnetic field. If you see now the force apply away from the, it's outside the magnetic field. See, this is the magnetic field, this is a velocity, and see my thumb is moving this side. See, you can try yourself also. So this is the force. That means you can imagine the center is almost there. If the center is almost there, so how you make a arc length like this, and then it will be coming out, because the ये यहाँ तक आने के बाद magnetic field खत्म हो गया, तो ये बाहर चला जाएगा. So this angle is theta. So now again this is center. If this angle is theta, this one is 90 minus theta. This one is 90 minus theta. This one is 90 minus theta. तो देखो टोटल कुल कितना हो गया, पाई माइनस 2 थीटा. मैंने बोला ही था कि जब ये एंगल, एक और तरह से याद कर सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है ये जो कोण है 180 से कम है, तो पाई माइनस 2 थीटा. अगर एग्जैक्टली 180 है तो पाई, और अगर तुम्हें कोण लग रहा है पाई का, कोण का जो है आर्क लेंथ जो है वो पाई से ज्यादा है, तो पाई प्लस 2 थीटा. यहाँ पे एंगल कितना हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया पाई माइनस 2 थीटा. तो आर्क लेंथ क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा इनटू रेडियस mv by qb. टाइम स्पेंट, डिस्टेंस बाय स्पीड, वेलोसिटी को हटा दो, पाई माइनस 2 थीटा m by qb. So this is the type 3. The last type मैंने बोला था 4 टाइप था, and believe me ये क्वेश्चन कितना खतरनाक था. IIT मेंस में एक बार मोर देन वन चॉइस में ये क्वेश्चन दिया था, ये चारों सिचुएशन दे दिया था, ऑप्शन ए बी सी डी, और बोला था कौन सा होगा. बच्चा लोग जनरली नहीं सोचता है कि साला मोर देन वन चॉइस है और चारों का चारों ऑप्शन राइट है. सो द ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी था. देखो डी में क्या किया था उन्होंने, they give it that way. This is the magnetic field, obviously uniform. This distance is d, small d, and यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को मूविंग विद सम वेलोसिटी. कितना सुंदर क्वेश्चन है देखो. तो दिस इज द एक्चुअल लाइन, ये सीधा जाना चाहता था,
when it is entered into the magnetic field and now it is 90 degree, we know if it is 90 degree, so then it is semicircle. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज ये मेरा सेंटर है, तो या और थोड़ा लंबा कर दो, लगता लगेगा क्वेश्चन को समझने में। सपोज मेरा सेंटर यहाँ पे है, सपोज मेरा सेंटर यहाँ पे है, तो अगर ये एक आर्क लेंथ है तो ये सर्कुलर जा रहा था, तो ये भी रेडियस मेरा आर ही होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, बिकॉज खाली जगह है, मतलब वो सीधा निकल जाएगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं मिलेगा वहां से वो स्ट्रेट टेंजेंशियल निकल जाएगा। तो यहां से ये टेंजेंशियल निकल गया, तो ध्यान से देखो, इसको मैं पीछे अगर बढ़ाऊं या इसको बढ़ाऊं, सो दिस एंगल इज द डेविएशन एंगल। इसको इधर जाना था, ये इधर चला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है सपोज r इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक, r इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक, और ये जो d है, अगर ये d r/2 है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? So see, it's a very good question. So you can imagine how good this question. Let it be A, let it be B, let it be O, let it be C. And if this angle is theta, this is 90 minus theta, so this angle is theta. So this angle is also theta. So if this angle is theta, so then what happened? If this is OA, means OA equals to OB equals to R. So you can write this is also R, and this is the D. So this is D, this is R, that is perpendicular, and this is hypotenuse. So sine theta. What do you mean by sine theta? Perpendicular by hypotenuse. So R by 2 by R, so half. Sine theta is half, theta is how much? Anyone tell me? T. So the answer is 30 degree. अच्छा, हम लोगों ने जब इतना कुछ पढ़ा है, इसके साथ हम लोग वो वाला भी आज ही पढ़ लेता है, तब मेरा एक पार्ट छोटा हो जाएगा। दैट इज साइक्लोट्रॉन। ऑल्दो साइक्लोट्रॉन बुक में बाद में है, क्योंकि हम लोगों ने इस पार्ट को पूरा पढ़ा है, तो हम लोग भी साइक्लोट्रॉन पढ़ सकते हैं। सिलेबस থেকে রিমুভ হয়ে গেছে। हाँ, সিলেবাস থেকে রিমুভ হয়ে গেছে। अरे रिमूव होते थे ना। साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन इज इसको कहा जाता है साइक्लोट्रॉन और पार्टिकल एक्सीलरेटर। दिस पार्टिकल एक्सीलरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो बाय यूजिंग पार्टिकल एक्सीलरेटर यू कैन एक्सीलरेट एनी पार्टिकल, मींस प्रोटॉन्स, एंड वी आर नॉट यूज इलेक्ट्रॉन टू एक्सीलरेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। तो हाई स्पीड में क्या होता है, उसका मास का वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब वेरी हाई स्पीड में because of very less mass, so it will enormously change, so it will loses its property. इसलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को, मतलब वेरी लाइट पार्टिकल को नहीं लेते, लाइक इलेक्ट्रॉन। हेवी पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब को हम लोग एक्सीलरेट करते हैं। और तुम लोग एक सुना ही होगा LHC, लार्ज हाइड्रोजन कॉलिजन, जिसमें क्या किया गया था, पार्टिकल्स को ऐसे कैसे करके घुमा घुमा के स्पीड ऑफ लाइट देके उसको फिर कॉलिजन किया गया था, और कॉलिजन करके हम लोगों ने देखा था, बिग बैंग थ्योरी को हम लोगों ने प्रैक्टिकली करने का कोशिश किया था। और इसको करने का एक ही कारण था, क्योंकि बहुत साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येन बोस, उसने कहा था कि जब ये यूनिवर्स का फॉर्म हुआ था, मतलब बिग बैंग थ्योरी हुआ था, तो बहुत सारा पार्टिकल क्या किया था, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। पार्टिकल फॉर्म हुआ था, फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। उस पार्टिकल का नाम दिया था, उनका नाम से बोसन पार्टिकल। उस पार्टिकल का नाम था बोसन पार्टिकल। और ये लगभग 1920, 1918, मतलब 15-16 इस टाइम में उन्होंने बोला था सत्येन बोस ने। और उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था कि इस बात को प्रूफ किया जाता, तो उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। उनका 100 साल बाद, आफ्टर 100 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 100 इयर्स तुम्हारा हिग्स बोसन, एक्चुअली 3 साइंटिस्ट था, उनमें से एक जन मर गया था, तो जो जिंदा रहता है उसी को नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसलिए जो जिंदा था मतलब हिग्स था, और एक जन कोई था, दोनों को मिला था नोबेल प्राइज।
2014 में, और उन्होंने पार्टिकल का नाम में अपना नाम के साथ बोसन का नाम भी रखा था, क्योंकि बोसन ने पहले उस पार्टिकल के बारे में बोला था। और हालांकि उन लोगों को एग्जैक्टली वो पार्टिकल नहीं मिला था, बट ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ नेचर का मिला था। और ये बात सही था कि कुछ पार्टिकल का जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण पूरा यूनिवर्स का मास देखा गया है, जितना मास होना चाहिए उसका 1/3 मास कम है। पूरा यूनिवर्स का 1/3 मास कम है। वो क्या करता है, एनर्जाइज कर देता है पार्टिकल्स को। और इसके लिए 100 साल बाद हिग्स को नोबेल प्राइज मिला था, और उन्होंने उसमें हिग्स बोसन नाम दिया था। तो अगर मेरे हिसाब से अगर किसी को इंडिया का अगर एक साइंटिस्ट का नाम लिया जाए जो मतलब सबसे बड़ा साइंटिस्ट है या सबसे ज्यादा नाम किया था, नोबेल प्राइज इंडिया का कुछ कुछ साइंटिस्ट को मिला था, पर मेरे हिसाब से सत्येंद्र बोस से बड़ा साइंटिस्ट इंडिया में अभी तक कोई नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसा 2-3 बार हुआ है जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल सकता था, या ऐसा बहुत हुआ है। जगदीश चंद्र बोस को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिल सकता था। हाँ, लेकिन सत्येंद्र बोस का जो था कि उन्होंने आइंस्टाइन के साथ थ्योरी दिया है, बोस आइंस्टाइन थ्योरी। तो और उसमें आइंस्टाइन ने बोस का नाम पहले रखा क्योंकि बोस ने सबसे पहले उसके बारे में बोला था। तो सत्येंद्र बोस ही ऐसा है जिनके साथ बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे बोस आइंस्टाइन थ्योरी, हिग्स बोसन पार्टिकल। तो मेरे हिसाब से सत्येंद्र बोस इंडिया का वन ऑफ मतलब बेस्ट, अगर रैंकिंग करो तो 1 नंबर में बोस का नाम आना चाहिए, सत्येंद्र बोस का। हाँ, तो उनका भी बहुत ज्यादा इस पार्टिकल एक्सीलरेटर का इसमें था। तो एक्चुअली बेसिक हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 तो डी शेप कंटेनर लेगा, ऐसे करके डी शेप कंटेनर लेगा। एग्जैक्टली सेम होगा, शायद मेरा हाथ से सेम नहीं दिख रहा है, पर एग्जैक्टली सेम होगा। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल है। बड़ा सा एक फ्लैट टिफिन बॉक्स ले लो, बड़ा सा टिफिन बॉक्स, हाँ, जिसमें इतना मानो इसका विड्थ है, बीच में से काट दो, तो तुम्हें सेमी सर्कुलर टिफिन बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर स्पेस है। तो एंड हाउ इट लुक लाइक, इट लुक लाइक ए डी। सो दीज आर द डीज, 2D है इसलिए डीज बोला जाता है। और इसके अंदर में हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे करके एक चेंजर लगाते हैं जो क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के तहत इसके पोटेंशियल का ये चेंज करेगा। तो एक्चुअली ये होना चाहिए ऐसे करके, लेकिन तुम्हारा जितना भी बुक है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं, वो लोग ऐसे दिया है, एसी फ्रीक्वेंसी दिया है, हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा, देखो अगर हम ऐसा लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये पीक वैल्यू है लेकिन यहाँ तक बढ़ा फिर घटा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एग्जैक्टली यहाँ तक हाफ, फिर उसके बाद एग्जैक्टली उल्टा। तो और ये ऑल्टरनेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक बार ये प्लस है एक बार माइनस है, मतलब ये वोल्टेज को ऑल्टरनेट कर रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। और इसके साथ तो तुम लोग ये साइन भी दे सकते हो, कोई गलत नहीं है, हाँ, हालांकि ये ज्यादा सही है। और जैसे मानो ऐसे करके हमने 2 डीज को रखा है, इसके ऊपर से एक मैग्नेट, नीचे से एक मैग्नेट, तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर मैं इस पेन को नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन में, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस वन होगा। और इसके साथ ऐसे करके मेरा डीज रखा हुआ है, तो इस डीज के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, 90 डिग्री पे देखो बन रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम लोग परपेंडिकुलर पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब भी हम लोग चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा कि इट विल मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक। तो मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो हम लोगों ने ऐसे करके एक मैग्नेट रखा ऊपर, और ऐसे करके एक मैग्नेट रखा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये ऐसे करके परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस किया, और थोड़ा बड़ा कर दो।
तुम लोग देखा ही होगा, हम लोग इसके अंदर नहीं दिए। ये प्रूफ कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल सो इससे ये चीज पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल आ रहा है। अप टू दिस इज इट ओके फॉर एवरीवन? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा बात को ध्यान से समझना है। ये जो बीच का जो स्पेस है, छोटा सा एक गैप है, एकदम छोटा सा गैप है, इसमें हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस पूरा जो इसका जो अंदर का जो वैक्यूम फॉर्म है, इसको हम लोग बंद कर सकते हैं ताकि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ, ये जस्ट एक्सटर्नल ये है, इसको हम पूरा बाहर से बंद कर सकते हैं। और इसके जो अंदर जो है, चेंबर के अंदर में हम लोग गैस देंगे। गैस इसलिए देंगे ताकि ये आराम से फ्लोट करके घूम सके, मतलब चार्ज को आयोनाइज कर सके। और इसके लिए जो चार्ज पार्टिकल लेंगे, इसी हिसाब से गैस हमें चेंबर में देना पड़ेगा। इफ यू यूज प्रोटॉन then we use the hydrogen gas, if we use alpha particle then we use helium gas। क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग एयर रखेंगे तो एयर का मास अलग होने के कारण उसके साथ कोलिजन होके दूसरा तरह का डाइवर्शन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह का रखेंगे ताकि वो इसमें आराम से फ्लोट कर सके। अब मजा का बात देखो क्या है, लेट इट बी D1 एंड लेट इट बी D2, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि ये मेरा प्लस चार्ज है, लेट फॉर द फर्स्ट हाफ दिस D इज प्लस and this D is minus। क्यों, देखो ये ऑल्टरनेटर है। अगर मेरा ये प्लस है, मतलब ये D को पहला वाला में प्लस किया है, उसका नेक्स्ट वाला में ये माइनस है, तो ये D मेरा प्लस है। चलो इसको मैंने माइनस ले लेता हूँ, ये मेरा माइनस है, ये मेरा मानो प्लस है। फॉर द फर्स्ट हाफ लेट D1 is minus and D2 is plus। We can start from here also। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब देखो ये तो कंटिन्यूअस है ना, तो मैं मानो यहाँ से स्टार्ट किया, नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, सो इट डजंट मैटर। मैंने स्टार्टिंग में किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस किया है, तो मैंने शुरू में मान लिया D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव, अगर मैं मान लेता हूँ कि D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव, जस्ट वन, अगर मैंने मान लिया ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, दिस पॉजिटिव चार्ज को दैट नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट एंड दैट पॉजिटिव चार्ज रिपेल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको पुल कर रहा है और ये इसको पुश कर रहा है। तो इस पुल एंड इस पुश के कारण यहाँ पे एक वेलोसिटी होगा कि नहीं, पहले मुझे बोलो। तुम यहाँ पे खड़े हो, कोई तुम्हारा हाथ देके ये टान रहा है और इधर से तुमको ठेल रहा है, तो तुम इधर ही जाओगे ना। इज इट ओके और नॉट? फर्स्ट टेल मी। यस सर। मैं देखो इस बात को थोड़ा अलग से तुमको समझाता हूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मानो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा पास एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मिला, कुछ भी एक वेलोसिटी मिला। जहां इसको वेलोसिटी मिलेगा ये हाफ सर्कल होगा कि नहीं, बोलो? होगा तो? यस सर। तो ये हाफ सर्कल घूम के आया, तो जहां ये हाफ सर्कल घूम के आया, आफ्टर हाफ इंटरवल दैट नेगेटिव बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो फिर इसको एक क्या होगा, थ्रस्ट मिलेगा। ये अब क्या करेगा, जो पुल कर रहा था ये जब हाफ घूम के आया, अब ये क्या करेगा, D1 क्या करेगा, पुश, और D2 क्या करेगा, पुल करेगा ना। अरे थोड़ा कोनो रिप्लाई दी। तो देखो हाफ जब घूम के आया, यहाँ पे आया, ये इसको पुश किया, ये पुल किया, तो ये पुश किया। देखो यहां से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहाँ तक आया, यहां से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आया। जहां यहाँ पे आया, इधर से एक धक्का दिया और इधर से भी इसको टाना, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं, बोलो? यस सर। तो जहां वेलोसिटी बढ़ा, तो अब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या, रेडियस बड़ा हो गया। तो रेडियस बड़ा हो गया मतलब फिर ये हाफ आया, फिर क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस। तो अब क्या होगा, फिर धक्का लगा, फिर रेडियस बड़ा हो गया। ऐसे करके ये धीरे 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 रेडियस बड़ा होता जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा। स्पीड हर बार जब इसका बीच में आएगा, हर बार जब इसका बीच में आएगा,
फिर इसका स्पीड बढ़ेगा V2, फिर यहाँ पे आया V3, फिर बढ़ा V4, फिर बढ़ा V5, ऐसे करके स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, करते 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 जब ये एकदम डी के मतलब जब जाके इसका दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराने से ठीक पहले यहाँ पे छोटा सा होल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी टाइनी होल, और यू कैन से ऑरिफिस, जहां से ये क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर नहीं निकला तो जाके इसका जो इसका जो सरफेस है उसमें जाके धक्का मार देगा। तो इतना हाई वेलोसिटी से धक्का मारने से क्या होगा, ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, गर्म होके इवन इतना गर्म हो सकता है ये जल जा सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं इसको क्या किया, ऐसे ऐसे करके स्पीड बढ़ाते रहा, स्पीड बढ़ाते 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 जब एकदम लास्ट में आके ये इधर से निकल जाएगा। सो यहाँ से जो ये निकलेगा दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड चार्ज पार्टिकल। अब देखो मैंने ऑलरेडी रेडियस वगैरह पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि कैसे रेडियस निकालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। तुम लोग चाहो तो मैं फिर से लिख सकता हूँ, F of B is F of C, magnetic field is the centripetal force, magnetic field is QVB, centripetal force is mv square by r, so r मेरा क्या होगा mv by qb होगा। और यहाँ का जो r है, यहाँ का जो r है that r is actually maximum radius of the D, that means half of the diameter of the D। D मतलब समझ रहे हो ना, ये जो D's है इसमें से कोई भी एक D का हाफ ऑफ द डायमीटर, और ये क्या हो गया mv by qb। तो तुम इसको V मैक्सिमम भी लिख सकते हो। अच्छा, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। अगर तुम्हें टाइम पीरियड पता है, तुम टाइम पीरियड को वैल्यू लगा के कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मतलब कितना देर बाद वो अपना ऑल्टरनेट चेंज करेगा, दैट यू कैन कैलकुलेट। इसके बाद जो है तुम इससे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, कितना जोर से निकला, दैट इज हाफ mv मैक्स, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब देखो हाफ mv के जगह पे यू कैन यूज qb r by m का होल स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर by 2m। याद करके देखो लास्ट क्लास में हम लोग सेम सब चीज बताया था, काइनेटिक एनर्जी निकालना, रेडियस निकालना, टाइम पीरियड निकालना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, यहाँ पे भी सब कुछ तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होगा, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होगा, वो है, শুনতে পাচ্ছিস না গ্রিনি? सो एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज द स्मॉल टी, that is called time spent in 1D। तो anyone tell me, अगर ये 2 D's है, 2 D मिला के एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, तो एक D में कितना टाइम लगना चाहिए? पाई m by qb। मतलब सिंपल कहानी क्या है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। यस सर। मतलब यहाँ पे पाई m by qb, सही बोला है, पाई m by qb। तो सो बस यही तुम्हारा एक्स्ट्रा दे देता है कि टाइम स्पेंड इन 1D कितना होगा। और इसका मेन ये कैसे मूव कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है कि आफ्टर ईच हाफ रोटेशन क्या करना है, मेरा इस D का पोलैरिटी को चेंज करना है। अगर ये माइनस था तो प्लस करना है, प्लस था तो माइनस करना है। और जब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते व्हेन जस्ट बिफोर इट कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इट्स from a very tiny hole, it is coming out with maximum kinetic energy। So kinetic energy is half mv square, where v is the r equals to mv by qb। इस r को तुम डायमीटर भी निकाल सकते हो, तो d by 2। तो कभी कभी तुमको यहाँ पे ये r के जगह पे वो डायमीटर भी दे सकता है, तो डायमीटर देगा तो तुम यहाँ पे r स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर बाई 4 कर सकते हो, r स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर बाई 4 मतलब d स्क्वायर बाई 8 लिख सकते हो, या अगर डायमीटर दिया है उसको हाफ करके रेडियस निकाल लो। सो यू कैन यूज एनी वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जगह, ज्यादातर यहाँ पे दे फर्स्ट स्टार्ट विद द बायोट एंड सेवर्ट लॉ।
लेकिन हम लोगों ने बायोट एंड सेवर्ट लॉ पहले स्टार्ट नहीं किया, अब हम लोग बायोट एंड सेवर्ट लॉ स्टार्ट करेगा। सो व्हाट इज बायोट एंड सेवर्ट लॉ? बायोट एक जन था, सेवर्ट एक जन था, दोनों मिलके एक लॉ दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि इफ सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इफ I इज द current carrying conducting wire and if we take a very small elementary length dl and if p is a point which is at a distance r from the current carrying conducting wire, r is a position vector obviously, so theta is the angle. So according to Biot and Savarт law, if current carrying conducting wire carrying current I of length dl, if we have to find out the magnetic field at point P, which is at distance r from that small elementary length dl, then magnetic field dB. Why we take dB? Because the length is dl. If we integrate it, we get the whole part. So magnetic field dB is directly proportional to current, directly proportional to dl, directly proportional to sin theta, inversely proportional to square of separation. Inversely proportional to square of separation. When we equal सबको एक साथ जोड़ देंगे, so I dl sin theta by r square, and when we equalize, we use a constant mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. तुम्हें पता चल ही गया होगा, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते थे तो हम लोग लेता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेता था। 1 बाई म्यू होता है और मैग्नेट में म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, ठीक है। सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला जाता है म्यू नॉट को बोला जाता है, म्यू नॉट को बोला जाता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और ये इन नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम। इसको म्यू का मतलब है, एप्सिलॉन का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम, म्यू का मतलब है मैग्नेटिक मीडियम, नॉट का मतलब है एयर और वैक्यूम। सो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 10⁻⁻7 यूनिट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। इसके लिए मीटर, देखो ऊपर एक डीएल है नीचे आर स्क्वायर है, तो मीटर बाय मीटर स्क्वायर हो गया मीटर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू क्या है? म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और अगर हम एयर की जगह पे कोई दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वगैरह यूज करें, हालांकि अभी जरूरत नहीं है, तो उसमें हम लोग म्यू आर लिख सकते हैं, म्यू मीडियम लिख सकता है, दैट इज म्यू आर इनटू म्यू नॉट, जो अभी तुमको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल रख के रखा क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब तुम लोगों ने किया है, ठीक है। So if you know the dimension of magnetic field, so you can find out the dimension of magnetic field, then meter means length and ampere. And last दिन हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन किया था। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम लोगों ने किया था m t स्क्वायर a माइनस 1 और उसके साथ लेंथ के लिए l, लेंथ के लिए l by a, so what we have m l t minus 2 a minus 2, ये मेरा डायमेंशन ऑफ म्यू, म्यू का डायमेंशन है, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन है। After that, one more very important question they ask, that is magnetic field in vector form, या Biot and Savarт law, Biot and Savarт law in vector form।
तो ये बायोट एंड सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे याद रखना वेरी सिंपल, डीबी वेक्टर मारो, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई एज इट इज होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो लिखना ही है डीएल क्रॉस आर, और नीचे लिखना है आर टू द पावर वेक्टर साइन देके क्यू। बात को समझने का कोशिश करो। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक आर से मल्टीप्लाई किया, एक आर से डिवाइड किया। तो जब मैंने एक आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो आर स्क्वायर बिकम आर क्यूब। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. So if it is okay, तो ध्यान से देखो, dl into r sin थीटा। तो देखो dl एक वेक्टर है, r एक वेक्टर है, dl भी एक वेक्टर है, तो दोनों का बीच में sin थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग dl क्रॉस r क्यों लिखे? Because dl is moving towards r. You all know that if a is a vector, b is a vector. If a is moving towards b, we write a cross b. And if B is moving towards A, we write B cross A. Is it clear? So here DL is moving towards the position vector. मतलब हम लोग ऐसे करके रेफरेंस लेते हैं, ठीक है? मतलब P पॉइंट का इस इधर से लेना पड़ेगा. So that's why we write DL cross R. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If it is okay, so then after that, बायोट-सेवर्ट लॉ का एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज, देखो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, मतलब आई है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ डीएल ले सकता है, और कोई एक पॉइंट ऑन द लाइन है, तो देखो आर भी सेम है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड पोजीशन वेक्टर, मतलब डीएल एंड पोजीशन वेक्टर। So 0. जीरो। सो याद रखना इस बात को, अगर करंट का ऑन द लाइन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोले, एज थीटा इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। ठीक है, देखो तुम लोग समझने का कोशिश करो। हाँ,